मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। देश के प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञों का सेमिनार आइरिस आई केयर की ओर से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। नेत्र विशेषज्ञों की ओर से नई तकनीकी के जरिए आंखों के इलाज के संबंध में बताया गया। आइरिस आई केयर के मैनेजिंग पार्टनर सुबोध कुमार सिंह ने इस आयोजन को सफल बताते हुए बेहतर हुए झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मरीजों को भी बेहतर इलाज में सफलता मिलेगी। And we asked this patient to just control sugars and come back. Since the sugars were high, we didn't plan the injection, and we just sugar control. When the patient comes back, you can see so much more improvement, and this is a dramatic improvement. This patient again was just put on anti-inflammatory drugs and came back with this much of resistance. Your needle has to be appropriate, and here I'm going to show you where I was not so appropriate. I'm filling in the viscoelastic time and again. Thank you very much for your patience. Dr. Chitra Madam is head of the Vitro-Retinal Services. 51% by 2045. At least 20% of them have any form of DR, and at least 8% of them have vision-threatening DME. They're taking insulin. It's 5. And a recently published study has showed that higher the peripheral, with good vision, you can actually just observe. You don't really need to treat parameters. For center involving DME, yes, definitely. I don't mean poor fellow, but poor fellows actually cannot have non-center involving and asymptomatic patients. So I just want to end with this quick study that we have been doing at our center. We want these to the lab and the samples. कॉन्फ्रेंस लाइव यहाँ पे जो चल रहा है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी हर साल आइरिस के इनॉग्रेशन के उपलक्ष्य में ये हम लोग लाइव सर्जरी या जितना रेटिना और कैटरैक्ट इन सब पे हम लोग डिस्कस करते हैं। बाहर से फैकल्टी आए हुए हैं, मुंबई, बेंगलोर और कैलकाटा से, और हमारे जो लोकल डॉक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच ये वार्ता हो रही है। जो नए रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रही है आँखों के इलाज में, तो इन सब चीज़ों से हमारे पेशेंट्स को कुछ सुविधा मिलेगा, क्योंकि इन सब के लिए अब पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये सारा ट्रीटमेंट अब पेशेंट को हम लोग यहाँ रांची में दे सकते हैं। सो इसीलिए ये जो हमारे जो बाहर से फैकल्टी और जो लोकल हमारे जो डॉक्टर सब कोई हैं, ये हमारी रेटिना की बीमारियों पे या प्री मैच्योर बच्चों की आँख की रेटिना की बीमारियों पे, कैटरैक्ट की नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रही है, उन सब पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो यही है, इसी पे हमारा सारा कुछ पर चर्चा चल रही है। So what is important is that patients with DME have life-changing consequences. Some of them can't perform work, some of them can't drive comfortably, difficulty in reading, increased risk of depression has been noted in several studies, and also perceiving colors and mortality because of the other existing comorbidities. But a simple 5-letter vision gain can help them read better, drive better, especially in difficult conditions. So the goal of our treatment is not only to reduce the amount of macular edema, to reduce the leakage on FA and the thickening on OCT, but also to improve or stabilize their vision. Of course, we do need to take into consideration their systemic parameters as well. So DME treatment per se has had a fantastic evolution over the past decades. We have come from 1980, where there was no treatment available, to just laser photocoagulation, which was just halting progression but never really improved it. Of course, now we've moved on to not only anti-VEGF but different anti-VEGFs with multimodal, multi-route, optimizing our treatment much better. हमारे देश में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस की रीज़न जो है बच्चों में ये बीमारी है, आरओपी। तो इसमें सबसे ज़्यादा बोलने वाले हैं जो हम डॉक्टर्स को और पब्लिक को हम ज्ञान जो देना चाहते हैं, वो ये है कि कोई भी बच्चा 2 किलो के कम वज़न पे जन्म हो जाता है, या ड्यू डेट से 6 हफ्ते पहले 34 हफ्ते या कम टाइम से अगर जन्म हो जाता है, तो उनका ज़रूर आँख का पीछे वाला पर्दा, रेटिना जो है, उनका जांच बहुत ज़रूरी है। और ये करना चाहिए बच्चा 1 महीना होने से पहले। तो इसको हम याद रखते हैं एक स्लोगन से, 30 दिन रोशनी के। 30 दिन होने से पहले अगर हम इनका बच्चों के रेटिना को हम जांच करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये बीमारी है या नहीं, और अगर है तो इसको हम फॉलो अप करते हैं।
काफ़ी बच्चों में ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है और 5 और 10% के बीच वाले बच्चों को जिनको ये बीमारी हो जाता है वो ज़्यादा होके इलाज करना लेवल पे आ जाता है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।